हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द वीडियो शो। आज हम अन्नामय मूवी के नेक्स्ट पार्ट पे रिएक्शन देने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं अपने रिएक्शन। गूज़बम्स यार। స్వామి ఈ సాక్షాత్కారం కల కాదు కదా, కల్పన కాదు కదా. ఆపద ముక్కులవాడ అన్ని భయాలను పోగొట్టే అభయ హస్తంతో, కరుణామృత ధారలు కురిపించే కటి హస్తంతో నన్ను కౌగలించుకున్నావా? నా తల్లులిద్దరికీ నిలయమైన నీ గుండెలపైకి నన్ను చేర్చుకున్నావా? నాతో పలికించుకున్న ఈ కీర్తనలకు ప్రతిఫలంగా ఇంత పెద్ద కూలి ముట్ట చెప్పావా? నా జన్మ తరించింది, చరితార్థమైంది. पूरे बॉडी में गूज़बम्स आ रहे हैं यार। ఇదిగో ఇదిగో నీ సొమ్ము 32,000 సంకీర్తనలు నిండి ఈ చిరుకైన 32,000 భండారంలో భద్రంగా దాచుకో. దాచుకో నీ పాదాలకు తగని చేసిన దాచుకుంటానులే గాని ఏమిటి అప్పుడే లెక్కలు అప్పచెప్తున్నావు? అప్పుడే ఏమిటి స్వామి, ఈ కట్టె పుట్టి 95 సంవత్సరాలు గడిచిపోయాయి. 95 పోయిన years. కాలాన్ని వెనక్కి తిప్పి అఖిల సృష్టి ధర్మాలను అధిగమించి మీ ఆయుష్ని పెంచుతాం. మాలాగా ఎప్పుడు యవ్వనంతో ఉండే వరం ప్రసాదిస్తాం. वाओ, खुद भगवान बोल रहे हैं। ధారే ఈ పరమపద సోపానపు ఆటలు, కోరికల నిచ్చెనలు ఎక్కించడం, ఆశల పాములతో మింగించడం నాకు కొత్తేమీ కాదులే. ఇంకా ఈ దేహంపై మోహం ఉందా పోయిందా అని పరీక్షిస్తున్నావు కదూ గోవిందా? కాదు, ఇది పరీక్ష కాదు. కాకపోతే ఏమిటి మరి? నీ కీర్తనలపై వ్యామోహం. నిజం, పాటతో మా హృదయ సామ్రాజ్యాలను పరిపాలించిన కవి మహారాజు. నీ పాటలను వింటూ మేమెంత పులకించామో, ఎంత పరవశించామో ఎలా చెప్పను. ఒకనాడు నువ్వు మా ఏకాంత సేవా సమయంలో नागार्जुन जी की एक्टिंग यार, लाइक वाओ, he's showing each and every tiny emotion in his face and wow. అంటూ రాలి పడుతుంటే ప్రతిబాలకున్న ఈ వటపత్రంపై పవడించి సేద తీరానయ్యా. ఒక్క పాట ఏమిటి, ఇంకొకనాడు మా దేవేరులకు మంగళ నీరాజనాలు సమర్పిస్తూ మరో అద్భుత కీర్తన ఆలపించాం. ఆ కీర్తన పద్మ పద్మ ఏమిటది? ఆహా, ఆ కీర్తనకు ఏమిచ్చి రుణం తీర్చుకోగలం? म्यूजिक यार, మనం లేదు కదూ పద్మ. सॉरी। మీరైనా చెప్పండి, ఆ సంకీర్తనలంటే మాకెంత మోహమో. అవునన్నమయ్య, ఆ సంకీర్తనల కోసమే స్వామివారు ఎతిగా మారి 7 కొండలు దిగొచ్చి నిన్ను ఢీకొని నీ దారి మళ్లించారు. Oh, they are revealing everything now. ఆ సంకీర్తనలకు వశులైతే స్వయంగా పురోహితులై నీ పెళ్లి జరిపించారు. అనంత ప్రకృతి మండలాలను మూసే పావన భుజ స్కంధాలపై నీ పల్లకి మూసారు. మీరు వెళ్ళిపోతే అలా
ఎవరు పాడతారు? ఎవరు మమ్మల్ని ఆడిస్తారయ్యా? ఆహా, నా పాటలు లోకాలను ఆడించే మిమ్మల్ని ఆడించాయా? వాటిని మీరు గుర్తుంచుకొని మళ్ళీ పాడి వినిపించేంతగా ఆడించాయా? చాలు స్వామి, చాలు. నాకు పట్టలేని అలసిపోయేంత ఆనందం He కలుగుతుంది. must be so overwhelmed right now. అమ్మా, ఈ ఆనందం నాకు దూరం కాకముందే మోక్షలోకం అనుగ్రహించమని చెప్పండి అమ్మా, చెప్పండి అమ్మా. వినరు. ఈ భక్తులు మా మాట వినరు. వాళ్ళు చెప్పిందే మేము వినాలి. వింటాం, కానీ అంతకు ముందు మనసారా ఇంకొక్క కీర్తన వినాలన్నదే. అవును స్వామి, ఒక్క పాట పాడవా అన్నమయ్య? అమ్మా, అమ్మా, ఎంత దయ చూపిస్తున్నారమ్మా. ఈ జన్మకు ఇంతకన్నా ఇంకేం కావాలమ్మా? మీరు ప్రత్యక్షం కావడం, ప్రశంసించడం, పాడమని శాసించడం, ఇదిగాక సౌభాగ్యం, ఇదిగాక తపము, మరి ఇదిగాక వైభవం ఇంకొకటి కలదా? పాడుతాను తల్లి, తప్పకుండా పాడుతాను. I must be a mess right now. సొలసితి ఇంతటనీ శరణిదే చొచ్చితిని అంతర్యామి అలసితి సొలసితి. కోరిన కోర్కులు కోయని కట్టు తీరవు నీవవి తెలుసగా. కోరిన కోర్కులు కోయని కట్లు తీరవు నీవవి తెలుసగా. భారపు పగ్గాలు పాప పుణ్యములు అలసితి సులసితి ఇంతటనీ శరణిదే చొచ్చితిని అంతర్యామి. మదిలో చింతలు మైలలు మణుగులు వదలవు నీవవి వదనగా. మదిలో చింతలు మైలలు మణుగులు వదలవు నీవవి వదనగా. ఎదుటని శ్రీ వెంకటేశ్వర వెంకటేశ శ్రీనివాస ప్రభు ఎదుటను శ్రీ వెంకటేశ్వర నీవది అదనదాచితివి అట్టి కనక అంతర్యామి అలసితి సులసితి ఇంతటనీ శరణిదే చొచ్చితిని.
जना सके प्रीवियस पार्ट और ये पार्ट बहुत ही इमोशनल था यार. आई मेड ए मेस ऑफ माई सेल्फ बट एनीवेज बहुत ही बढ़िया एंडिंग थी यार. एंड जिस तरह से वो राजा के जगह से निकलते हैं ना अपनी पत्नी को खोने के बाद, वो पूरा एक गाना शुरू होता है एंड सब लोग इनके साथ भी चलने लगते हैं एंड तिरुपति पहुंचते हैं एंड अपनी जो भी ज़िंदगी है बची कुची ज़िंदगी वहीं कीर्तना लिखते लिखते बहुत सारे 32,000 कीर्तनास लिखते हैं वहीं तिरुपति में भगवान के पास उनके मंदिर के पास रह के. एंड दैट वाज सो सो गुड टू सी कि उन्होंने जैसे कहा था कि मैं अपनी सारी जो ज़िंदगी है वही बिताना चाहता हूँ एंड ही डिड इट. अन्नमैया जी के बच्चे और पोते हैं ना, वो सब लोग इनका सपना पूरा करने में लगे रहते हैं. पूरी दुनिया घूम के जो भी भगवान के बारे में वो फैलाते रहते हैं, वो बहुत बढ़िया था यार. लाइक दे आर ऑल्सो लाइक सेल्फलेस, दे आर गिविंग वॉट एवर ही इज ड्रीम्ड ऑफ, दे आर गिविंग इट द वर्ल्ड. वाओ, वो भी अच्छा था. एंड जिस तरह से बीच में दिखाया जा रहा था ना कि सब लोग जो कास्ट के जो भी दिखाया जाता था वो थोड़ा सेगमेंट था कि थोड़े लोगों को मंदिर के अंदर परमिशन नहीं दी जाती है, जाने को मना करते हैं. तो ब्रह्मा मुक्कटे बोल के जो गाना आया, वाओ दैट शोड सो वेल कि सब लोग एक ही हैं. एक ही धरती पे अच्छे लोग रहते हैं, बुरे लोग रहते हैं, शैतान रहता है, भगवान रहता है. तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम कौन है, उस तरह का मीनिंग आने वाला था. बहुत ही अच्छा था. एंड दैट लेड टू द जेलसी ऑफ अदर प्रीस्ट जो भी भगवान को पूछते हैं मंदिर में होते हैं ना वो पंडित, उनको ऐसा लगता है कि हमारे धन भ्रष्ट हो रहा है इनकी वजह से जो सिखा रहे हैं सबको. तो आउट ऑफ जेलसी वो सब जो भी कीर्तनास हैं उनके वो जलाने पे रखते हैं. बट दैट सीन वॉज सो गुड यार. लाइक अग्नि देवता भी लाइक भगवान जानते हैं, अग्नि देवता भी जानते हैं कि ये अन्नमैया जी विष्णु लाइक वेंकटेश्वर स्वामी जी के बहुत प्रिय भक्त हैं. तो ही डजंट वांट टू बर्न हिम. तो वो भी भगवान का परमिशन से भगवान जो भी अपना कृपा दृष्टि डालते हैं उससे वो अग्नि देवता भी सिकुड़ जाते हैं. वो अच्छा लगा. एंड मोहन बाबू जी का जो उन्होंने जो प्रीवियसली उनको पनिशमेंट देके जो उनके हिसाब से पाप किया था, वो एटलीस्ट लास्ट में जिस तरह से उनके कीर्तना सबको एक कॉपर प्लेट पे लिख के बोल रहे थे ना कि कभी वो क्या बोलते हैं नष्ट ना हो, डैमेज ना हो, उसका जो उन्होंने ख्याल रखा है. जब तक दुनिया रहेगी तब तक ये सारे कीर्तना रहेंगे. वो जिस तरह से उन्होंने एक राजा की तरह उन्होंने लिया है, वो प्रण पूरा किया है. तो आई थिंक ही हैज़ डन अ लॉट दैट जो भी प्रीवियसली पनिशमेंट देने की कोशिश की थी उसका उन्होंने जो पाप धो दिया है इस काम की वजह से. तो वो भी अच्छा लगा. उन्होंने जो भी अपना रिमोर्स है वो पूरा रिग्रेट जो भी है उन्होंने पूरा कर दिया है. वो उनका वो ख़त्म हो गया वहाँ. एंड उन्होंने लास्ट में गाना गाने के लिए कहा. तो इट्स लाइक भगवान जो भी करते हैं ना वो पूरा प्री प्लान्ड होता है. सो उनकी ही परमिशन से जो एक गाना उन्होंने गाने के लिए अन्नमैया जी ने कहा था मोहन बाबू जी को कि पर्टिकुलर टेक सेट, बिकॉज वो लिखा हुआ है उनके क्या बोलते हैं तकदीर में लिखा हुआ था. एंड वो सुनने के बाद अन्नमैया जी को रियलाइज़ होता है. एंड उनका जो नारद जी का जो तंबूरा है ना वो भी उसका स्ट्रिंग टूट जाता है. तो वाओ, वो सीन बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है. एंड लास्ट क्लाइमैक्स सीन यार, लाइक मैं एक तरफ से खुश हो रही थी कि उनको दर्शन मिल गए भगवान के. एंड ही इज़ एबल टू सी his beloved God, दी वेंकटेश्वर स्वामी जी को देखने को मिला उनको अपनी आंखों से. एंड ही टच्ड हिम, उनको गिरने से बचाया है. वो मेरे लिए बहुत ही ओवरवेलमिंग लग रहा था. एंड आई नो हाउ अन्नमैया जी माइट हैव फेल्ट, क्योंकि मुझे बहुत खुशी हो रही थी उनके लिए कि उनको देखने को मिला है इतने सालों के बाद. इट्स लाइक 95 years when that happened. एंड बहुत अच्छा लग रहा था. एंड आई डिड नॉट I knew what's coming, but I was like, I don't want to see. But yeah, वो भी शॉट बहुत अच्छा था जिस तरह से उन्होंने एक दिए को नीचे गिराया था. I wanted to say
तभी बोलना चाह रही थी बट आई कुडंट टॉक। मैं इतनी स्पीचलेस हो गई थी, इतना ओवरवेलम हो गई थी इमोशंस की वजह से कि मेरे मुंह से बात नहीं निकल रही थी। मैं वो ये कहना चाह रही थी कि वो जो दिया नीचे गिर गया है ना, वो थोड़ा जलते रहता है। इट्स लाइक शोइंग व्हाट्स लाइक अन्नमया जी का जो लाइफ है, इट्स लाइक हैंगिंग इन द थ्रेड बोलते हैं ना, वो दिए की तरह है जो थोड़ा सा आग है उसमें पता नहीं कब बुझ जाए। तो उनकी लाइफ भी, उनका जो आत्मा है वो भी वैसे ही हैंग कर रही है हवा में। ऐसा वो प्रेडिक्शन जो बोलते हैं ना, वो जो डिपिक्शन था दिए को दिखाने का और उनको दिखाने का, वही था मीनिंग। आई एम श्योर, क्योंकि जिस तरह से वो एंगल, कैमरा एंगल था, जिस तरह से दिखा रहे थे दोनों को, आई न्यू आई वॉन्टेड टू से when that scene came but I couldn't talk because of emotions. But yeah, and that was so beautiful. हर जिस तरह से दिखाया गया है, everything was so good. The masterpiece. I loved it. और जब अन्नमया जी को गिरने से बचाते ना, मेरे पूरे बॉडी में गूज़बम्स आ गए थे। इतना खुशी हो रही थी, इतना आई वॉज लाइक सो एक्साइटेड फॉर हिम कि उनको भगवान को देखने को मिला बोल के। एंड गाना गाते हैं एंड आई कैन फील द इमोशंस यार। नागार्जुन जी के एक्सप्रेशंस, उनके बॉडी मूवमेंट्स, मैनरिज्म सब देख के मुझे आई कैन फील हाउ ही इज़ फीलिंग। आई कैन सी हाउ ही इज़ लाइक एक एक बात जब बोलते रहते हैं कि ऐसा बन के आए थे, तुम्हारी शादी करवाई थी, तुम्हारा पल्लकी उठाया था, जब बोल रहे थे ना, वो जिस तरह से बिहेव कर रहे थे, आई कैन अंडरस्टैंड हाउ ही इज़ फीलिंग। ओवरवेलमिंग इमोशंस फ्लो हो रहे थे। एंड जब भगवान खुद बोलते हैं कि मैं तुम्हें अमर बना दूंगा, फिर भी मना करते हैं, तो भगवान आर्ग्यू करते रहते हैं, वो भी अच्छा लगा कि दे जेन्यूनली वांट हिम टू स्टिल लिव एंड राइट मेनी मोर कीर्तनास। बट नागार्जुन जी लाइक अन्नमया जानते हैं कि नहीं, ज़िंदगी लाइक मरना जीना, वो जो कीर्तना उन्होंने लिखा था ना, जो मोहन बाबू जी पढ़ते हैं, तो जननम मरणम बोल के कुछ था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। तो जो भी बर्थ होना है, डेथ भी कंपल्शन है। लाइक इट्स लाइक इफ़ यू आर बॉर्न देन यू हैव टू डाई। वो एक लाइन है, वो प्रकृति का जो नियम है ना, वो पूरा करना है बोल के अन्नमया जी जानते हैं। तो ही इज़ लाइक नो, आई हैव टू एंड आई वॉन्ट टू गेट द मोक्षा बोल के, जो मुझे अपने आप में संभालो, मैं अकेले ऐसा नहीं रहना चाहता हूँ, मुझे अपने आप में संभालो, मुझे वो मोक्ष दे दो बोल के जिस तरह से पूछते हैं। एंड एवरी सीन, एवरी थिंग, द कैमरा फ्रेमिंग, द लोकेशन, जिस तरह से भगवान को दिखा रहे थे, लाइटिंग से जो दिए का लाइटिंग आ रहा था, उनका जो म्यूज़िक था उसके पीछे, वाव यार, एवरीथिंग वाज सो गुड। I loved every song and few songs are like wow. Emotions को clearly देख सकते हैं। Last one was how he sat there and he was seeing Purush like I don't know what to say. He was like भगवान को उनके क्या बोलते हैं, विश्व रूप में देख के लास्ट में जो नंदकम बोलते हैं ना, वो स्वॉर्ड की तरह आते हैं, देन उसी की तरह बदल के फिर वापस में समा जाते हैं। दैट वाज आल्सो ब्यूटीफुल। लाइक द मेन पर्पस ऑफ दैट नंदका वाज टू be born as Annamaya and do his duty, write his Telugu kirtanas and then get back to his Lord. That's what happened. But in between whatever happened, it's like वो बहुत ही प्यारा मूवी था यार। लाइक डिवोशन के बारे में अगर जानना है ना, ये मूवी देखो। एवरी इमोशन, हंसी मिलेगी, रोना मिलेगा, गूज़बम्स मिलेंगे, सब कुछ है इसमें। आई डोंट नो, मुझे बहुत अच्छा लगा यार। आप लोग बताएं आपको कैसा लगा, कमेंट्स में ज़रूर लिख के भेज दीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले वर्ष में, तब तक के लिए बाय।